Goraknath, welcome to my channel. In previous lecture, we are going for impact object series and this is derivation number 4. In previous lecture, we have gone for derivation number 1 and 2. Okay, 1 minute. We'll go for first derivation number 3. थोड़ा सा आप स्क्रीन को ये डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, थोड़ा मेरे पास जो पीडीएफ है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नो डाउट. Let's start derivation number 3. Jet striking a symmetrical curved plate tangentially on one end and the plate is stationary. So this is again stationary case. Okay, so plate is fixed but the jet is going to strike tangentially. In previous two session, jet was striking directly at 90-degree angle and first derivation was plate was flat straight plate. Second derivation it was curved plate. In third case, now again it is a curved plate but jet is going to strike tangentially. Means what? I'll show you. In previous first derivation, plate was fixed, jet was striking like this. Second derivation, plate was curved and it was fixed, again jet was striking at 90-degree. In third derivation, now jet is striking tangentially. So this is important. Now as it is going inclined, we have to resolve in x and y direction. So jet will strike this plate and it will travel in this direction. Okay, and there will be x and y component at outside. Okay, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जेट कैसे आ रहा है. और एक लॉजिक आपको बताता हूँ, जेट अगर ऐसे अलोंग x डायरेक्शन आ रहा है तो इसका y कंपोनेंट 0 रहेगा. यहाँ पे भी x डायरेक्शन में आ रहा है तो y कंपोनेंट 0, ओनली x कंपोनेंट रहेगा. बट अगर वो इंक्लाइंड आ रहा है तो इन दैट केस हमें रिजॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए x भी कंपोनेंट आएगा, y भी कंपोनेंट आएगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. एंड आउटसाइड जैसे जाएगा, a भी इंक्लाइंड जा रहा है तो अगेन x एंड y कंपोनेंट आएंगे. ओके, इन डेरिवेशन 1 वो डायरेक्टली 0 हो रहा था, यहाँ पे जेट वाज मूविंग एट सम इंक्लाइंड एंगल, तो अगेन हमने उसको x एंड y डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है. ओके, तो पिछला वीडियो देखो, आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएगी. Okay, so this is derivation number 3. Consider a jet of water coming from a nozzle strike a symmetrical curve plate tangentially. Okay, this statement is common. In first derivation it was at 90-degree and in second derivation it was also 90-degree and symmetrical curve plate was there. Here new word we have to add, that is tangentially. अगेन स्टेटमेंट इज सेम. आपको ये 2-4 चीज़ें ऐसे रटनी है, याद रखनी है. कोई भी डेरिवेशन आएगा तो ये बेसिक चीज़ें, एंड डेरिवेशन का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा. सो अज्यूम v इज़ अ वेलोसिटी ऑफ जेट एंड d इज़ अ डायमीटर, जेट का डायमीटर d है. फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ प्लेट टेंजेंशियली. तो अगेन यहाँ पे टेंजेंशियली वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको ये अंडरलाइन करना है. Force exerted by a jet on a plate is equal to rate of change of momentum in the direction of force. As मैंने बताया कि as per Newton second law, rate of change of momentum का law है. So हम momentum को कैसे लिख सकते हैं? We can write momentum as mass into velocity. Okay, and that is nothing but your force. So force is equal to initial momentum minus final momentum upon time. Okay, so what we are going for? We'll go for initial momentum will be mass into initial velocity and final momentum will be mass into final velocity. So हमने क्या किया है, आप पहले वीडियो में देखो, हमने मास को बाहर निकाला है अपॉन टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल टर्म, आपको याद रखनी है. तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, x एंड Fy. यहाँ पे x एंड y कंपोनेंट आएंगे क्योंकि मैंने बताया इट इज़ स्ट्राइकिंग टेंजेंशियली. तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मास अपॉन टाइम है हमने इसको कन्वर्ट किया रो ए वी में. मैं आपको इसका अगेन लॉजिक बता देता हूँ. मास किस में रहता है, केजी में रहता है एंड टाइम सेकंड्स में रहता है. तो रो ए वी कैसे आया, रो इज़ नथिंग बट डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. तो एक मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब और इसे कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली केजी पर सेकंड. सो केजी पर सेकंड ऐसा उसको हमने अरेंजमेंट किया है. तो ये याद रखना है आपको, रो ए वी. नाउ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? यस, इन प्रीवियस टू डेरिवेशन इनिशियल वेलोसिटी वाज ओनली v. आपको ये चीज़ याद रखनी है, इट वाज ओनली v. बट
in this case it is v cos theta. Why? Because it is acting tangentially and we are going for x component. तो हमें रिजॉल्व करना होता है, तो x क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, तो v cos थीटा एंड वर्टिकल विल बी v sin थीटा. ओके, नाउ ऐसे स्ट्राइक करके ऐसे मूव करेगा एंड वी विल ट्रैवल लाइक दिस. अगेन वी हैव टू रिजॉल्व दिस x एंड y कंपोनेंट. सो इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा आएगा, माइनस का साइन ये माइनस इधर है एंड फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग बैक साइड, सो अगेन माइनस v cos थीटा. ओके, so minus minus will be plus, so fx will be rho a v 2 times 2v cos theta. okay, so finally हम लिख सकते हैं 2 rho a v square cos theta. तो ये आ गया fx component. what will be fy component? again same mass upon time rho a v. what is initial velocity? yes, it is v sin theta. यहाँ पे देखो इंक्लाइन जा रहा था, पहले दो डेरिवेशन में इट वाज 0 बिकॉज आपका जेट स्ट्राइक डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे अभी इंक्लाइंड है, तो ये चीज़ याद रखनी है. एंड अगेन माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है तो माइनस आएगा एंड वी साइन थीटा ये ऊपर जा रहा है, सो वी साइन थीटा. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 0 हो जाएगा, तो एफ वाई कंपोनेंट विल बी 0. ओके, सो लाइक दिस वे आपको फोर्स एक्सर्टेड एक्स एंड वाई डायरेक्शन याद रखना. एंड अगेन वर्क डन विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट टेक प्लेस. ओके, सो दिस वॉज योर डेरिवेशन नंबर 3. नाउ विल मूव फॉर डेरिवेशन नंबर 4. अभी स्क्रीन को थोड़ा शिफ्ट करो, वर्टिकल करना है आपको. ओके, so this is derivation number 4. jet striking tangentially on to an unsymmetrical curve plate. now again same logic है, but this is unsymmetrical. in previous session it was third derivation was symmetrical. okay, so what will happen? the angle will get changed. okay, same logic is there. consider a jet of water coming out from a nozzle striking unsymmetrical plate tangentially. okay, सब में यही चेंजेस आपको करने हैं, बाकी सब इजी है. अजूम वेलोसिटी v, d इज द डायमीटर ऑफ जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट टेंजेंशियली आपको ये लिखना है. अगेन सेम स्टेटमेंट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ प्लेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, सेम स्टेटमेंट है. अगेन मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. अगेन हम इसको लिख सकते, फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम. चलो अभी ये लॉजिक समझ में आए, तो ये लॉजिक से हम विदाउट लुकिंग टू द पीडीएफ हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे. कैसे निकालना है? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी ये डायग्राम ठीक से देखो, सी दिस डायग्राम. अभी जेट टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ये जो प्लेट है ये अनसिमेट्रिकल है. पिछला जो ड्यूरेशन था वो सिमेट्रिकल था, यहाँ इसलिए यहाँ पे एंगल सपोज थीटा रहता था तो यहाँ पे भी सेम थीटा जनरेट होता, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल. इन थर्ड डेरिवेशन अभी हम वी आर गोइंग इन फोर्थ डेरिवेशन, सो दिस प्लेट इज अनसिमेट्रिकल. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस इज नॉट थीटा, दिस इज समवॉट डिफरेंट. सो लेट्स से दिस अज्यूम दिस फाई एंगल. ओके, तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है. अभी जेट इन टेंजेंशियली जा रहा है तो हमें रिजॉल्व करेंगे. सो दिस इज वी कॉस थीटा एंड वर्टिकल विल बी साइन थीटा. अगेन ऐसे मूव करके इट विल ट्रैवल लाइक दिस, वी वेलोसिटी. सो एक्स कंपोनेंट एंगल विल बी फाई, डिफरेंट एंगल होगा. सो वी कॉस फाई एंड वी साइन फाई, इतना ही डिफरेंस होगा. ओके, अभी क्या लॉजिक बताया मैंने. एफ एक्स क्या होगा? मास अपॉन टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं? मास अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं रो ए वी दैट इज मास अपॉन टाइम. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है, दैट इज वी कॉस थीटा. माइनस फॉर्मूला माइनस है एंड वो ऐसे मूव करके ऐसे रिटर्न जा रहा है, सो दैट इज माइनस वी कॉस फाई. ओके, तो यहाँ पे सेम आपने लिखा है, चेक करो आप. तो इसको हम सॉल्व करने के बाद कितना आएगा देखो, यहाँ पे रो ए वी कॉमन निकाला, वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई. ओके, व्हाट अबाउट वाई कंपोनेंट एफ वाई? सो अगेन रो ए वी दैट इज मास अपॉन टाइम, वी साइन थीटा माइनस माइनस एंड ये ऊपर जा रहा है, दैट इज वी साइन फाई. ओके, तो लाइक दिस वे आपको ये याद रखना है. इसमें वी कॉमन निकालो, सो आपको आंसर आएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई. ओके, तो लाइक दिस वे में डेरिवेशन करने हैं. बहुत ही ईजी डेरिवेशन होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक अगर समझ में आ गया तो आपको आसानी से कर सकते हैं और बहुत बार एग्जाम में आता है. ओके, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं. पहला डेरिवेशन था दैट वाज प्लेट वाज स्टेशनरी striking 90 degree, so force only was x direction not y direction, that was rho a v. initial velocity v था.
स्ट्राइक करने के बाद वो 0 हो गए, तो दैट वाज रो ए वी स्क्वेयर। ओके, सेकेंड डेरिवेशन क्या था, कर्व प्लेट था, अगेन सिमेट्रिकली एक्ट कर रहा था, सो एफ एक्स कंपोनेंट था रो ए वी, इनिशियल वेलोसिटी वी, ऐसे मूव करके रिटर्न जा रहा था, सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस वी कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड एफ वाई कंपोनेंट भी था रो ए वी, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था, लेकिन माइनस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा था, सो दैट वाज वी साइन थीटा। दिस वाज सेकंड डेरिवेशन आंसर। आप पिछले वीडियो देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया, एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ। अगेन थर्ड डेरिवेशन में क्या था, इन थर्ड डेरिवेशन सिमेट्रिकल ऊपर कर्व प्लेट टेंजेंशियली एक्ट कर रहा था, सो वी कॉस कंपोनेंट आएगा, वी साइन कंपोनेंट आएगा, एंड ऑल्सो वी कॉस कंपोनेंट एंड वी साइन कंपोनेंट आएगा अगेन, एंड लास्ट केस ऑल्सो इंक्लाइंड प्लेट अनसिमेट्रिकल प्लेट है, तो कॉस एंड थीटा कंपोनेंट आएगा। तो आई थिंक ये चारों डेरिवेशन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के डेरिवेशन देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।